vorstellen. Ist das heute möglich? Also am Vormittag hat Frau Lustig leider keine Zeit. Um 9 Uhr hat Frau Lustig eine Besprechung mit dem Direktor. Die Besprechung dauert 2 Stunden. Um 11 Uhr hat Frau Lustig eine Telefonkonferenz und um 12:30 Uhr macht sie Mittagspause. Und wie ist es am Nachmittag? Hat Frau Lustig vielleicht am Nachmittag Zeit? Um 13:30 Uhr schreibt Frau Lustig einen Bericht. Um 14:30 Uhr telefoniert sie mit Kollegen in London und um 16 Uhr fährt sie nach Berlin. Sie können heute leider nicht mit Frau Lustig sprechen. Und morgen? Hat Frau Lustig vielleicht morgen Zeit? Morgen ist Samstag, Herr Gruber. Sie können gerne am Montag wieder anrufen. Dann ist meine Kollegin Katja Esser hier. Gut, ich rufe am Montagvormittag wieder an. Welche Telefonnummer hat Frau Esser? Moment. Die Nummer von Frau Esser ist 7 63 54 26. Ich wiederhole. 7 63 54 26. Ja, viel Erfolg, Herr Gruber. Vielen Dank. Auf Wiederhören. अच्छा ये देखिए टेक्स्ट उन्होंने पूरा नहीं दिया है इधर कुछ यहाँ से मतलब ब्लैंक्स है वो आप हमने खुद फिल करने यहाँ से पिक करके सिर्फ वो साउंड हो सकता है इस तरह का भी हो टेस्ट के एक पीछे एक ऑडियो मतलब रन हुआ कन्वर्सेशन रन हुआ आपने सुना और ये टेक्स्ट दिया होगा कि आप इसको फिल करें उसको आपने सुन लिया था यहाँ से हम पिक करें जी सर यहाँ पे जो कन्वर्सेशन लिखी है ये वो जो लिसनिंग कन्वर्सेशन थी उससे डिफरेंट नहीं थी नहीं एग्जैक्टली वही चीज़ है डिफरेंट नहीं थी एग्जैक्टली वही थी तो ये कन्वर्सेशन इस तरह से स्टार्ट हुई कि ये फ्राउ मुला जो सेक्रेटरी है इसको कॉल आई तो इसने उठा के क्या कहा मुला तो आगे से वो जो ओटो ग्रुबा था हेर ग्रुबा उसने क्या कहा या गुटन टाग फ्राउ मुला या ist Otto Gruber ich möchte bitte mit Frau Lustig sprechen I want to speak with Frau Lustig तो फ्राउ मुलर ने क्या कहा ist es उसने बोला था Otto Gruber नहीं ist es dringend का मतलब है अर्जेंट कि ये अर्जेंट है बात करना आपका उससे ist es dringend तो Herr Gruber ने कहा था या ich möchte ein Projekt vorstellen eine Projekt vorstellen ich möchte eine Projekt Idee Project Idea ich möchte eine Projektidee vorstellen उसने कहा था मैं चाहता हूँ कि एक प्रोजेक्ट आइडिया पेश करूँ ist es heute möglich और उसने कहा था कि मोगलिश का तो पता है आपको पॉसिबल is this possible today तो फ्राउ मुलर ने क्या कहा also का मतलब है सो या अच्छा जैसे हम उर्दू में नहीं कहते अच्छा am Vormittag at Frau Lustig leider keiner Zeit am Vormittag Frau Lustig hat leider keiner Zeit 9 Uhr hat Frau Lustig eine Besprechung mit der Direktor फिर इसमें क्या बोला था उसने die Besprechung dauert हाँ die Besprechung dauert नहीं dauert die Besprechung dauert 2 Stunden 11 Uhr hat Frau Lustig eine Telefonkonferenz und 12:30 Uhr macht sie Mittagspause बोला था Mittagspause macht sie Mittagspause 12 Uhr कि मतलब इतने टाइम नहीं है 9 बजे डायरेक्टर के साथ मीटिंग है फिर ये जो मीटिंग होगी 2 घंटे चलेगी 11 बजे टेलीफोन कॉन्फ्रेंस है और 12:30 पे Mittagspause करेगी अच्छा फिर एर गुरुबा फिर जब उसको समझ आ गया कि टाइम नहीं है फिर उसने क्या कहा und wie ist am Nachmittag and how is in the afternoon hat Frau Lustig vielleicht am Nachmittag Zeit मतलब आफ्टरनून में टाइम है तो फ्राउ मुलर ने क्या कहा 13:30 Uhr schreibt Frau Lustig क्या einen Bericht
ये वो एक रिपोर्ट लिखेगी. 14:30 telefoniert sie mit Kollegen in London. 16 Uhr fährt sie nach Berlin. nach Berlin. 6 बजे बर्लिन 4 बजे बर्लिन जाएगी. Sie können heute leider nicht mit Frau Lustig sprechen. You cannot speak with. क्या हुआ? Sie können heute leider nicht mit Frau Lustig sprechen. बंद करना तो यार, मैं भी बोल, मेरी आवाज ये म्यूट कर ले यार, जिन्होंने अब घर में बात हो रही है यहाँ पे आ रही है हमारे पास. अच्छा, इसके बाद है हेर ग्रूबा. उसने कहा कि आज वो बात नहीं कर सकती. हाँ, और उसने कहा कि यहाँ पे दिया होगा. हाँ नहीं, उंड मॉर्गन. हाँ, और कल के बारे में पूछा क्योंकि आज उसने बोला आज टाइम नहीं है. उंड मॉर्गन, हाउ इज टुमारो? हट फ्राउ लुस्टिग vielleicht morgen Zeit. तो फ्राउ मुलर ने क्या कहा? मॉर्गन ist Samstag, Herr Gruber. मतलब tomorrow is Saturday. You know that Saturday is off. Sie können am Montag. हाँ, Sie können am Montag. Sie können am Montag. Gerne am नहीं. Gerne wieder anrufen. Sie können सर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें लिखा हुआ है ज्ञाने मोंटाग. हाँ, Sie können gerne am Montag. Sie können gerne am Montag wieder anrufen. Dann ist meine Kollegin Katja Esser hier. यानी आप मंडे को कॉल कर सकते हैं और उस वक्त मेरी जो कुलीग होगी कातिया वो होगी, मतलब मैं नहीं हूँगा. तो यार गुरुबा ने क्या कहा? Gut, ich rufe am Montag Vormittag wieder an. Wieder का मतलब है again. I will call again on Monday morning, Vormittag, before noon. फिर क्या कहता फ्राउ ऐसा? वेल्शे टेलीफोन नंबर. हाँ, वेल्शे टेलीफोन नंबर हट फ्राउ ऐसा, क्योंकि इसने कहा था कि मैं खुद नहीं होंगी, फ्राउ ऐसा होगी. तो उसने पूछा फिर वेल्शे टेलीफोन नंबर. टेलीफोन नंबर hat Frau Esser. उसने Frau Müller ने कहा Moment, die Nummer von Frau Esser ist 763 54 26. Herr Gruber ने कहा, क्या कहा फिर? Ich wiederhole. हाँ, ich wiederhole. I repeat the same number. Ich wiederhole. Wiederhole का मतलब है repeat. Ich wiederhole 763 54 26. Ich wiederhole. फिर फ्राउ मुलर ने कहा या क्या? Erfolg. या viel Erfolg. Viel Erfolg. viel Erfolg का मतलब है सक्सेस, मच सक्सेस या मेनी सक्सेस. जैसे हम नहीं बोलते कि उसने कहा कि फिर मैं मंडे को कॉल करूंगी, तो फील का मतलब है मच. एयरफुल सक्सेस, मच सक्सेस, यानी विश कर रहा है कि आपकी बात हो सके उससे. फील एयरफुल. आप वहां पे ऐसा होता है कि जब भी आप कुछ कहते हैं कि मैं ये काम करूंगा, तो वो क्या कहते हैं? फील एयरफुल. एयरफुल मतलब सक्सेस, मच सक्सेस. फिर एयरग्रुबा ने क्या कहा? फीलन डंक ऑफ विदाजेन. तो ये कन्वर्सेशन थी. आपने देखा कि इसमें आपने एक लिसनिंग चल रही है, इस तरह नोट करना है. अच्छा, lesen Sie die Beispiel-Dialog, spielen Sie nach das Telefongespräch, tauschen Sie die Rolle. अच्छा, यहाँ पे मैं किसी दो को सेलेक्ट करता हूँ. ये दोनों जो है ये कन्वर्सेशन रन करें. एक बाबर खान और सैयद तैमूर. अगर आप दोनों ये टेलीफोन गिस्प्रेश जो है प्ले करें, कि जैसे बाबर कहेगा हेलो बाबर, तो ये आगे से ये कहेगा गुटन टाग, फिर आगे इस तरह से कन्वर्सेशन चलेगी. तैमूर और बाबर. सर इनका नाम क्या है? बाबर, आप तैमूर है, वो बाबर है. तो आप फोन आप उठाएंगे, आप कहेंगे तैमूर, तो आगे से वो बात शुरू करेगा. यार तैमूर. या guten Tag.
Timur. Hier ist Babar Khan. सॉरी, एक मिनट, आपने कहा या गुटन टाग, आप हेर तैमूर बोले, हेर मिस्टर तैमूर, हेर तैमूर। Ja, guten Tag, Herr Timur. Hier ist Babar Khan. Ich möchte bitte mit Timur sprechen. नहीं, mit Frau माया। Okay. तैमूर Third तो person उसका आ गया, सेक्रेटरी है। हाँ, Okay. यहाँ पे मिट फ्राउ लुस्टिश ही कर दूं या नहीं, ये कोई माया और कर पता दे, ये माया लिखा हुआ है। ये जो मैंने बोला है, ये वाला, ये पढ़ना है आपने, ये फ्रॉम माया वाला, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये वाला कर। जी सर, ओके सर। तो आपने कहा इस मोस्टे मिट फ्राउ माया एक्सप्रेशन। अब आपकी बारी है। तैमूर है, तैमूर है। Dreigend. इस द्रिंगंट आपने कहा कि हाँ, क्या ये अर्जेंट है? इज इट अर्जेंट? हाँ, अभी आप बोलेंगे। Ja, ich möchte eine Projektidee präsentieren. Ist das heute möglich? Heute möglich? Moment bitte. Also heute hat hier Babar leider keine Zeit. एक मिनट, आपने कहा कि also heute hat बाबर नहीं, माया। अरे बाबर से आप मुझे बोलने दे एक मिनट। also heute hat Frau Maya leider keine Zeit, क्योंकि आप सेक्रेटरी है, आप कहेंगे कि फ्राउ माया के पास टाइम नहीं है। थोड़ा आराम से और ठीक बोले उसको। also heute hat hier Babar से अब हियर बाबर खान से आ गया, ये लिखा हुआ है यार, ये सामने, आप इसी को पढ़े ना। Frau Miller Leader keine Zeit. Frau Maya leider keine Zeit. Und wie ist es morgen? Hat Frau Maya vielleicht Morgenzeit? Morgen ist Samstag. Hier Babar Wochenende Arbeit Frau Wochenende arbeitet Frau Miller nicht. Maya nicht, Frau Maya. Nicht. Sie können gern am Montag wieder anrufen. Der ist mein Kollege, Herr Schneider hier. आगे Gut, dann rufe ich am Montag wieder an. Welche Telefonnummer hat Herr Schneider? Die Nummer ist 86 53 42 86. Gut, die Nummer ist 86 53 42 86. Ich wiederhole 86 53 42 86. Vielen Dank, Herr Demur. Bitte sehr, auf Wiederhören. जब आप फोन पे किसी से वो कर सकते हैं, एक तो था auf Wiedersehen ना, Wiedersehen का मतलब see you again, Wiederhören का मतलब है hear you again, मतलब टेलीफोन पे आप Wiedersehen नहीं कहेंगे, आप कहेंगे Wiederhören, auf Wiederhören, यानी hear you again, दोबारा मतलब आपसे बात होगी। ठीक है। एक हैंग भी था। प्रेजेंट लिख, अच्छा प्रेजेंट लिख।
मकबूल ज़ेरी और आयशा फैसल, अगर आप दोनों पढ़ ली एक दफा। जब तक आप लोग स्टार्ट करेंगे ये क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। सर उन्होंने कहा कि माइक नहीं चल रहा। अच्छा, माइक नहीं चल रहा। ये एक मिनट में। और राबिया बीबी आपकी चल रही है माइक? अच्छा, अनम और राबिया आप दोनों अगर पढ़े। सर। अनम और राबिया, राबिया है? यस सर। आप दोनों ये कन्वर्सेशन पढ़े। एक आप में से आ बन जाए, दूसरा बे। शुरू करें। आप लोग क्यों वेट कर रहे? शुरू कर ले दूसरा। अनम नहीं आई सर। सर मैं जी अभी आप स्टार्ट करें। यार राबिया, हाँ राबिया आप स्टार्ट करें। अनम फिर आप। चलो, अनम ए है, आ है, और राबिया बे है। अनम जी सर। आगे। सर मैं ए हूँ ना, तो मैंने अपना नाम बता दिया। हाँ राबिया आप बाकी म्यूट कर ले। सिर्फ अनम और राबिया जो है अनम्यूट है, बाकी म्यूट कर ले अपना। Tag, Frau, ist Rabia. Ich möchte bitte mit Frau Maya sprechen. Ist das in Bild? Ja, ich möchte eine Projekt hier präsentieren. Ist das heute möglich? एक मिनट। Ich möchte eine Projektidee होगा। Projektidee präsentieren ist das heute नहीं, heute। Heute möglich. मोगलिश, हाँ। अभी आप अनम। अभी माइक। Moment bitte. Also, heute hat Frau Maya leider keine Zeit. Keine Zeit. Ja, ist es Maya viele nicht morgen Zeit. Hat Frau Maya vielleicht morgen Zeit? Morgen ist Samstag. Frau Maya am Wochenende arbeitet Frau Maya nicht. Sie können gerne am Montag wieder anrufen. Da ist meine Kollegin Schneider hier. Gut, dann hoffe ich Montag an welche Wieder an. welche Telefonnummer hat Herr Schneider. Die Nummer ist 86 53 42 86. Ich wiederhole 86. Schemek ki gone çırmam. 86, 53, 42, 86. Vielen Dank. Frau. चलिए आप खत्म कर लीजिए।
ठीक है, Auf Wiederhören. बिटा ज़िया ऑफ विदाउट। अच्छा चले, आप हो गया, ये म्यूट कर लिया आप लोग। विल चांस आएगा पास्ट। अच्छा ये जो टास्क है, ये आप कह सकते हैं कि एक रीडिंग जो एग्जाम है उसमें आ सकता है। उसमें होता ये कि एक एडवर्टाइजमेंट होती है, मतलब जैसे इस केस में कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है और ये एडवर्टाइजमेंट है कि कौन सा मैच करता है आपके रिक्वायरमेंट से। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है जी मोश्तन जालसा ठानसन जी हाबन नुआ अम आबन साइट। जी मोश्तन means you would like to do salsa dance. जी हाबन नुआ अम आबन साइट, you have only time in the evening, यानी आप ये डांस सीखना चाहते हैं और आपके पास सिर्फ शाम को टाइम है। अब यहाँ पे वो है, दो एडवर्टाइजमेंट है कि कौन सा मैच करता है आपके उससे। अब पहला एडवर्टाइजमेंट है डांस कोर्स फॉर अनफेंगा उन फॉर गिश्नीते। अनफेंगा बोलते बिगनर्स को और फॉर गिश्नीते एडवांस्ड। ठीक है, तो ये डांस कोर्स है फॉर बिगनर्स और एडवांस्ड। क्लासिशा उन मॉडर्न डांस से, क्लासिक और मॉडर्न डांस कोर्स से मोन्टाग बिस जोन्टाग 19 bis 21 Uhr। ये मंडे टू संडे है और शाम 7 बजे से 9 बजे। और दूसरा क्या है, इस सुखे ein Tanzpartnerin for eine Tango Kurs। I am searching for a dance partner for Tango Kurs। Die Kurs fängt nächsten Sonntag 14 Uhr an। जो कोर्स होगा वो नेक्स्ट संडे से शुरू होगा 2 बजे, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपने बताना है कि कौन सा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा मैच कर रहे हैं, कौन सा एडवर्टाइजमेंट। सर इसमें इंफॉर्मेशन को देखना होगा। सर बी कर रहा है, ए कर रहा है सर। ये नहीं बोले, बोले ना आप तो सर ए कर रहा है। ये नहीं बोले ना, बोले बी। कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसने बोला था कि आपके पास सिर्फ शाम को टाइम है ना, नुआम आबन साइट। अब सिर्फ शाम को आपके पास टाइम है। तो यहाँ पे भी ये क्या बोला था कि 19 bis 21 Uhr। तो ये वाला मैच कर रहा है। ये तो कोर्स नहीं था, ये क्या था, ये कह रहा था मुझे एक पार्टनर चाहिए, मतलब डांस पार्टनर, और वो भी किस वक्त है। कोर्स है डांस पार्टनर, लेकिन ये कितने बजे, 2 बजे। तो आपने ऐसे, जैसे आपने अभी पिक किया है आपने, क्योंकि आपने देखा था कि ये इसमें दिया हुआ था जिहाबन व आबन साइट, और ये टाइम क्या है, ये आबन टाइम ही है, तो ये आपके साथ मैच कर रहा है। आपने इस तरह से इंफॉर्मेशन एक तरह से उसमें से पिक करना है कि वो मैच करे आपके उससे। सर अच्छा जी सर, ये पे वाला ईमेल नहीं लग रहा है, वो एक ईमेल कर रहा है, उसको पूछ रहा है, इसी वजह से वो उसमें नहीं लाइक करेगा। ईमेल नहीं, वो उसने अपना इंफॉर्मेशन दिया है, आप नहीं देते एडवर्टाइजमेंट में। वो तो ठीक है सर, लेकिन इसमें मतलब इंफॉर्मेशन देखनी है कि कौन सी इंफॉर्मेशन उसकी रिक्वायरमेंट से मैच कर रही है। तो वही तो हम कर रहे हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पे भी उसने अपना वेबसाइट दिया, यहाँ पे अपना ईमेल दिया, इंफॉर्मेशन तो ऊपर दिया हुआ है उसने, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है। अच्छा, सेकंड इसी तरह का है, Sie möchten eine Kochkurs besuchen, Sie haben am Wochenende Zeit, you want to do a cooking course and you have only time on weekend। अब दो एडवर्टाइजमेंट है आ में क्या कह रहा है, besuchen Sie unsere neue Spezialitäten Restaurant in der Mozartstraße, Küche geöffnet bis 24 Uhr, auch am Wochenende। ये कह रहा है कि कोई रेस्टोरेंट है हमारा इस स्ट्रासे पे, Küche geöffnet bis 24 Uhr, किचन 12 बजे रात तक खुली है, auch am Wochenende, वीकेंड को भी। और दूसरा एडवर्टाइजमेंट क्या है, Sie möchten kochen lernen, you want to learn cooking, machen Sie einen Kurs, you want to make a course, 4 Wochen, 4 weeks, Samstag und Sonntag, Saturday and Sunday von 10 bis 12 Uhr। यानी 4 हफ्तों का कोर्स है 10 से 12 बजे, और वो है भी सैटरडे संडे को।
तो इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा मैच कर रहा है? बे मैच कर बे क्यों बे बे मैच क्यों कर रहा है। कर रहा है? बे क्यों कर रहा है? किसने आप बोला था? सबने बे बोला है ना? बे बोला था सबने। हाँ, क्यों? बे में सर कोर्स के बारे में बता रहा है और बता रहा है कि वीकली कोर्स। हाँ, क्योंकि आ में कोर्स नहीं बता रहा है। आ में तो सिर्फ एक रेस्टोरेंट के बारे में बता रहा है ना। रेस्टोरेंट के बारे में बता रहा है। हाँ, ये कोई रेस्टोरेंट है, कोई कोर्स नहीं है। ये कह रहा है 12 बजे तक। बे में वो बता रहा है कि मुश्तान जी कोखन लेरन आप कोर्स करना चाहते हैं और रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि इसने कहा था मेरे पास सिर्फ टाइम वो खनंडे को है, और ये है भी वो खनंडे को Samstag, Sonntag। अच्छा, थर्ड पे आते हैं। Sie möchten für ihre Arbeit am Wochenende Italienisch lernen. Sie suchen einen Sprachkurs. You want for your work to learn Italian and you have only time on weekend. दो एडवर्टाइजमेंट है, Italienisch, Französisch und Spanisch Kurs mit muttersprachlichen Lehrern. Kurs am Wochentage und am Wochenende. कोर्स जो है वीकडेज में भी है, वीकेंड्स में भी है। दूसरा है Sie brauchen Deutsch und Englisch für den Beruf. Unterricht in kleiner Gruppe am Wochenende. Contact this. तो which one match? होगा सर। होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर इसमें इटालियनिश कोर्स भी है, उसमें नहीं है इटालियनिश। उसमें नहीं है। हाँ, ये देखिए इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कि यहाँ पे इटालियनिश है, वहाँ पे नहीं है। अब कुछ लोग शायद गलती करें कि यहाँ पे वो खनंडे लिखा हुआ है, वहां पे भी वो खनंडे लिखा हुआ है। कुछ लोग समझे शायद कि ये मैच कर रहे हैं। नहीं, असल चीज क्या है? असल चीज इटालियनिश सीखना है। अब वहां पे वो खनंडे का जिक्र तो है, लेकिन इटालियनिश नहीं है, बल्कि क्या है? Deutsch und इंग्लिश है। तो ये आ मैच करेगा। अच्छा, इसी तरह से ये आपका है Sie möchten am Montag Vormittag zusammen mit anderen Menschen Sport treiben. You want to do sports with others on Monday Vormittag, यानी before noon. ये आएगा सर। eine neue Studio आएगा क्योंकि सर इसमें बे आएगा सर। एक मिनट मुझे सबके लिए पढ़ने थे, फिर बाद में आप लोग बोले। ये कोई तरीका नहीं है क्लास का कि बाकी अब कुछ है जो जल्दी पिक नहीं करते, उनके लिए तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। अच्छा, आ है उसमें unser Fitnessstudio hat eine neue Adresse. Ab Montag findet sie uns in आ में बताया कि हमारा फिटनेस स्टूडियो has a new address. From Monday you will find us on this street. और बा है in September beginnt unser neues Kursprogramm. Yoga, Fitness und Pilates. Kleine Gruppe Montag bis Freitag 10 bis 12 Uhr. तो कौन सा मैच करेगा? बे मैच करेंगे। बे करेगा। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये स्पोर्ट मंडे टू फ्राइडे है, और कितना है? 10 से 12 है। और आपकी रिक्वायरमेंट भी है कि मंडे फॉर्मिटॉक आप दूसरों के साथ अब ये इसने बताया भी कि क्लाइंट ग्रुप है, ये ग्रुप्स में होंगे ये स्पोर्ट्स। तो ये बे मैच करेगा। आ में तो सिंपल ये बता रहे हैं ना कि हमारा एड्रेस चेंज हो गया है, अब मंडे से ये होगा। ये ठीक है, आपका लेसन कंप्लीट हो गया। कुछ होमवर्क अगर यहाँ पे थे मैं आपको दूंगा। ये U9 आप करेंगे, फिल करेंगे, ठीक, वो कन्वर्सेशन जो है, और ये करेंगे। ये कौन सा मैच करते हैं? जिससे ईमेल श्राइबन कोलेगन क्या होगा, ठीक है, ये आप करेंगे बस फास्ट। और साथ में ये आखिरी ये एंड वाला भी आप करेंगे। इसमें ये दिया हुआ है formulieren Sie die Fragen des Reporter an Frau Eschenbach. ये फ्राउ एशनबाख कोई जर्नलिस्ट है, इसे कोई रिपोर्टर इन फ्राउ एशनबाख से इंटरव्यू ले रहा है, और फ्राउ एशनबाख आंसर दे रहा है। आपने गेस करना है, आपने लिखना है कि उसने क्वेश्चन क्या किया होगा। जिससे उसने आंसर दिया था फ्राउ एशनबाख ने इश वो ने इंटरेस्टन, तो उसने क्वेश्चन क्या किया होगा? वो नंजी फ्राउ एशनबाख क्वेश्चन मतलब कन्वर्सेशन यहाँ से स्टार्ट हुई थी। वो नंजी फ्राउ एशनबाख, तो उसने आंसर दिया था इश वो ने इन ड्रेस्टन। फिर रिपोर्टर ने कहा था वन बिगिंट
इगटाक या उम्वी फील हुआ, ठीक है, यहाँ पे उसने कहा था। तो अब ये है, यहाँ से इसने जवाब दिया इश्टे माइस्टन्स उमजीबन हुआ आउफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है? उम्वी फील हुआ Aufsicht से क्या होगा? Aufstehen. Aufsicht स्टेन जी ऑफ ऑफ स्टेन नहीं, स्टेन जी ऑफ। उम्वी फील हुआ स्टेन जी ऑफ, पूरा सेंटेंस बनाना है आपने। फिर उसने आंसर क्या दिया था? इश्टे माइस्टन्स उमजीबन हुआ ऑफ। इसी तरह से बाकियों का भी इस तरह से आंसर्स होंगे। आपने वो क्वेश्चन बनाना है कि वो क्वेश्चन क्या था जिसका आंसर उसने दिया था, ठीक है? ये वाला आप करेंगे, फिर मैं कल चेक करूंगा। अच्छा, इसको मैं वाइंड अप करता हूँ इस लेसन को। ये थोड़े से देखते हैं कि क्या चीजें, जब भी लेसन एंड हो जाए तो आप पहले देख लीजिएगा ये चीजें कि इसमें हमने पढ़ा क्या है। जिसमें जैसे इसमें आपने जो 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 दिन है उनके नाम आपने याद किए, जैसे दिया मोन्टाग, दिया डीनस्टाग, दिया बाइटस्टाग, और हमने कहा था कि ठाक और उनके साथ दिया आता है, और फोर मिठाग, नाख मिठाग, ये चीजें। तो ये वो सारी वो चीजें जो आपने अभी 63 हाँ क्या, तो ये वो टॉपिक्स है जो आपने लर्न किया, ये आप देखेंगे। एक उसकी समरी है, और दूसरा आप ये देखेंगे कि आपने वर्ब्स कौन कौन से लर्न किए और उसके एग्जाम्पल दिए हुए। जैसे आपने लर्न किया अनफांगन, ये सेपरेबल वर्ब है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? वन फैंग द टेलीफोन कॉन्फ्रेंस अन। टेलीफोन कॉन्फ्रेंस कब शुरू होगी? क्योंकि सेपरेबल है। अनगुफन मार्टिना गुफ्ट मंचमल कोलेगन अन, ये भी सेपरेबल है। तो यहाँ पे ये लेफ्ट पे आपको वर्ब्स दिए होंगे, आपने उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए होंगे। तो आप देखेंगे कि आपने इस लेसन में कौन कौन से वर्ब, और स्पेशली इस एक्सरसाइज में आपने सेपरेबल वर्ब्स लर्न किए, जैसे अनफांगन, जैसे अनगुफन, जैसे aufstehen, ausgehen, ये कौन से थे? सेपरेबल वर्ब्स। फिर आपने ये बाकी भी आपने लर्न किए ये वर्ब्स, इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी दिए, ये आप देखेंगे। और ये कुछ बिजोंडस वर्ब है, जो स्पेशल वर्ब्स है, जो मतलब जो रूल है, वो जो नॉर्मल रूल है उस पर अप्लाई नहीं होता। जैसे आपने अनफांगन आपने एक सेपरेबल वर्ब आपने लर्न किया इसमें। तो जब आप इसको यूज करते सब्जेक्ट वाइज तो कैसे होता है? इश फांगे अन, डू फैंग्स्ट अन, एस फैंग्ड अन, यानी वो फंक्स्ट नहीं होगा, फंक्ट नहीं होगा, बल्कि डू के साथ फैंग्स्ट होगा, यानी उमलाउट लगेगा आ पे। जैसे श्लाफन होता है श्लेफ्स्ट, श्लेफ्ट। जैसे लेज क्या था वो, एक और भी था इस तरह से, अनफांगन, श्लाफन, फारन, जैसे फारन था, फैंग्स्ट, फैंग्ड। सर ये स्पेशल वर्ब बन जाएंगे। हाँ, स्पेशल वर्ब्स है ये स्पेशल वर्ब्स है जो आम रूल उस पे अप्लाई नहीं होते। जैसे होना तो ये चाहिए था ना, अगर ये नॉर्मल वो होते तो ये फांगन अनफांगन फांगे इश होता, फांगस्ट अन होता, यानी सिर्फ एस टे लगता, लेकिन यहाँ पे आप पे उमलाउट भी लग रहा है, तो ये स्पेशल है। फैंगस्टन वो श्लाफन की तरह श्लेफ्स्ट, वो फारन की तरह फैंग्ड, ठीक है? तो एस फैंग्ड अन ये स्पेशल है। वी के साथ फंगन अन होगा, जी के साथ फंगन अन होगा, और ए के साथ फांग्ड अन होगा। ये आपने याद करना है इसे, ये स्पेशल है। अब जैसे अनफांगन इसी तरह से श्लाफन है। श्लाफन को देखे, इस श्लाफे टू श्लेफ्स्ट, आ नहीं होगा बल्कि ए होगा, वो उमलाउट वाला होगा। डू श्लेफ्स्ट या जी श्लेफ्ट, वी श्लाफन, जी श्लाफन, या श्लाफ्ट, या श्लाफ्ट, ये होगा। एक्सप्रेशन या हम कर चुके हैं। एक्सप्रेशन भी स्पेशल वर्ब है, जिसमें क्या होता है? इस एक्सप्रेशन टू स्प्रिस्ट होता है, ये भी ये नहीं होता बल्कि ई होता है। टू स्प्रिस्ट या जी स्प्रिस्ट, वी एक्सप्रेशन, जी एक्सप्रेशन, या स्प्रिस्ट। कोनन, इस लेसन में हमने पिछले लेसन में हमने मॉडल वर्ब लर्न किया था मोस्टन। इसमें हमने क्या लर्न किया? कोनन। कोनन मैंने बताया तो उसमें यूज होता है, एक पॉसिबिलिटी के सेंस में, एक फेकाइट कि मैं ये कर सकता हूँ। तो कोनन जिसको इंग्लिश में कैन बोलते हैं,
तो कोनन हमने मॉडल वेयर यूज वो किया, इसमें लर्न किया, और इश के साथ हमने देखा खन आता है, टू के साथ खंस्ट आता है, या जी के साथ या एस के साथ खन आता है, या कोई नाम हो खन आता है, विया के साथ खोनन आता है, या के साथ खोंट आता है, जी फॉर्मल और जी प्लूरल दोनों के साथ खोनन आता है। फिर हमने ट्रेनबा वर्ब, इसमें हमने सीखा कि ट्रेनबा वर्ब जो सेपरेबल वर्ब्स है, जैसे अनफंगन, aufstehen, ausgehen, einkaufen, fernsehen, ये ट्रेनबा वर्ब भी हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह यूज होता है, कि जब आप उसको यूज करते हैं तो सेकंड पार्ट पहले आता है, जैसे इश फांगे, और ये अन जो है वो प्रीफिक्स एंड में आता है, इश फांगे बंद करें माइक अपना। Ich stehe auf, aufstehen क्या होगा? Ich stehe auf, ich gehe aus, ich kaufe ein, ich sehe fern, ये सेपरेबल वर्ब है, तो पहले वर्ब का जो सेकंड पार्ट है वो आएगा, फिर प्रीफिक्स एंड में आएगा। लेकिन कुछ वर्ब्स हमने कहा थे कि वो नहीं होते, वो इकट्ठे ही यूज होते हैं, जैसे अगर बे ए शुरू में आ जाए या ए एन टी आ जाए, जैसे इश बिगिने, इश इंट्विकले, वो इस तरह नहीं होता है कि ये बे ए एंड में चला जाए या ए एन टी एंड में चला जाए। इसी तरह से अगर कोई उल्टा है, उबा है शुरू में, तो वो भी ऐसे ही होगा, इकट्ठे यूज होगा। unterrichten, unterrichte, übernachten, übernachte, जैसे ये थे। फिर हमने कहा था कि ये मॉडल वेयर की पोजीशन कहाँ होती है जब ये आता है कोनन या खन, ये हमेशा सेकंड पोजीशन पे आता है। Andreas kann heute ins Museum gehen, वो जो दूसरा वर्ब है वो एज इन्फिनिटिव एंड में चला जाता है। जब मॉडल वर्ब आता है तो वही सेकंड पोजीशन वर्ब की जगह ले लेता है। जो नॉर्मल वर्ब होता है गेन, ट्रिंकन, एसन, श्राइबन, वो कहाँ जाता है? सेंटेंस के एंड में, सट्स एंड में, जिसको इन्फिनिटिव कहते हैं। तो ये अंदर खान मार्टिना स्टेट उमजीबन हुआ ऑफ, ये वो सेपरेबल वाला। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन जब आप बनाते हैं, क्वेश्चन में भी जब डब्ल्यू वाले क्वेश्चन हो तो ये जो मॉडल वर्ब है वो सेकंड पोजीशन पे ही रहेगा। वन कोनन वी इंस म्यूजियम गेन, ये जो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव वर्ब वो एंड में चला जाएगा। जो मॉडल वर्ब है क्वेश्चन में भी वो सेकंड पे रहेगा। लेकिन अगर आप यस नो क्वेश्चन बनाएंगे तो वो शुरू में आएगा। जैसे कोनन है, आप यस नो क्वेश्चन बना रहे हैं कि मतलब ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं कि उसका आंसर या यस होगा या नो होगा, तो आप क्या कहते हैं? कांस टू होइटेंस म्यूजियम गेन। ये मॉडल वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट सेकंड पोजीशन पे आएगा, बाकी सेंटेंस और इन्फिनिटिव एंड में आएगा। या स्टेज टू मॉर्गन ऑफ, देखिए वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट सेकंड पे, बाकी सेंटेंस और ऑफ हमने कहा था प्रीफिक्स एंड में आता है। ठीक है, तो ये थे। इसके बाद हमने प्रपोजिशन हमने देखे इस लेसन में। अन का मतलब है ऑन, हस टू अम मोंटाग साइड। अम जो होते हैं वो अन देम होते हैं, ये हम देखेंगे जो डाटिव सेंटेंसेस होते हैं। वैसे होता है अन देम मोंटाग है ये, हस टू अन देम मोंटाग साइड। तो अन देम को हम शॉर्ट करके अम लिख सकते हैं। बेसिकली ये अन ही होता है, अन प्लस देम इज इक्वल टू अम, यानी ऑन, डू यू हैव टाइम ऑन मंडे, हस टू अम मोंटाग साइड। टाइम के लिए यूज करते हैं अम, या अन दिन के लिए यूज करते हैं Der Unterricht beginnt 18 Uhr. Von bis, from, till. Ich arbeite von 9 Uhr bis 7:30 Uhr. For का मतलब है before. Es ist Viertel vor 10. It is 10. For जो इंग्लिश में 4 बोलते हैं उसको. It is 10 for 10, यानी पहले. Nach, past. Es ist 5 Minuten nach 12, यानी it is 5 past 12. Zu मतलब to. Max geht zum Arzt. Max goes to doctor. Zu dem होते हैं बेसिकली, zu dem, तो ये इसको आप शॉर्ट करके सुम लिख सकते हैं। ठीक है। फूर जो है जिसको इंग्लिश में फोर बोलते हैं, पीटर लैंड फॉर द प्रूफिंग, फॉर द एग्जाम। फॉर जो है वो फोर होता है इंग्लिश में, जिसको फोर बोलते हैं। इसी तरह से एडवर्ब, इसमें हमने इस तरह से हमने एडवर्ब सीखे इसमें। मोंटाग्स, डीनस्टाग्स, यानी हर मंडे को, एवरी मंडे को हम क्या बोलते हैं? मोंटाग्स। Ich spiele Fußball montags, यानी मैं हर मंडे को फुटबॉल खेलता हूँ। तो आप कह सकते हो Ich spiele jeden Montag या Ich spiele montags, Dienstags,
Wir haben montags um 15 Uhr eine Besprechung. यानी every Monday we have meeting at 3. Morgens, abends, Nacht, इसी तरह से आप कहते हैं हर सुबह, हर शाम, हर रात, तो एक एस एंड में लगाते हैं. Abends geht Yunus aus. Abends मतलब हर शाम को यूनस बाहर जाता है. इसी तरह से हमने देखा manchmal जिसको हम कहते हैं कि कभी कभार, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं oft, often, meistens, mostly, manchmal schreibt Martina Brecht die Telefon. तो ये 12 लिए हमने एडवर्ब सीखे. तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया. आप ट्राई करें इसका, ये टेस्ट भी करें और फिर कल से फिर हम ये नया चैप्टर शुरू करेंगे. एसन und trinken चैप्टर 5 शुरू करेंगे. ठीक है, आप होमवर्क जो है आप कर लें फिर कल. Dann sehen wir uns am Montag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sir. सर टेस्ट का क्या बोला था आपने? चूस वो टेस्ट का बोला तो ये चैप्टर 4 के एंड में इस टेस्ट को भी आप ट्राई करें. मैं मंडे कल तक अगर आप कर सके तो कल इसको देख लेंगे. ठीक है, मंडे को से बाकी होमवर्क ओके सर. ठीक है. ओके, Thank you so much, sir. Allah Hafiz. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Okay.